حد سے زیادہ دوپہر میں NGO کے دفتر میں لگے پنکھے کی آواز خاموشی کو چیر رہی تھی۔ ہیرا اپنی میز پر جھکی کچھ فائلوں میں مگن تھی جب اچانک دروازہ کسی نے بدحواسی میں کھولا اور ایک لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھی۔ وہ سیدھی ہیرا کی میز کے سامنے آ کر فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ ہیرا نے چونک کر اسے دیکھا اور جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم کون ہو اور اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ ہیرا نے اسے سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ لڑکی ہچکیاں لیتے ہوئے بمشکل بول پائی تھی، میرا سب کچھ لٹ گیا میڈم۔ اس شخص سے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب میں اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ درندہ مجھے مار ڈالے گا۔ ہیرا کا دل اس کی حالت دیکھ کر پسچ گیا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھام لیا۔ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بس مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ وہ لڑکی ایک لمحے کے لیے روکی اور پھر نفرت سے ایک نام لیا، ارباز احمد خان۔ ہیرا کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے یہ نام پہلے بھی سن رکھا تھا، شہر کا مانا ہوا بزنس ٹائکون جس کی طاقت کے قصے ہر زبان پر عام تھے۔ اس نے مجھے شادی کا جھانسا دیا، مجھے ساتھ تعلق قائم کیا، اور اب جب اسے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں تو اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ وہ لڑکی دوبارہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ ہیرا کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تو یہ ہے اس بڑے نام کا اصل چہرہ، ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر کے وہ سکون سے اپنے بنگلے میں بیٹھا ہے۔ تم فکر مت کرو مایا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس ارباز احمد کو اس کے کیے کی سزا دلوا کر رہوں گی۔ وہ جتنا بھی طاقتور ہو قانون سے بڑا نہیں ہے۔ ہیرا نے اسے دلاسا دیا، مگر اس کے ذہن میں اس شخص کی وہ تصویر گم گئی جو اس نے اخبارات میں دیکھی تھی، ایک مغرور اور بارہوش شخصیت جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ شام کو جب ہیرا اپنے گھر پہنچی تو مسلسل اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور ارباز احمد کے بارے میں سرچ کرنا شروع کر دیا۔ اسکرین پر اس کی تصویر ابھری، سیاہ سوٹ میں ملبوس وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی گہری نظریں جیسے اسکرین سے باہر ہیرا کو چیلنج کر رہی ہوں۔ ہیرا نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کتنا بھی بڑا بزنس ٹائکون کیوں نہ ہو، کل جب اس کے آفس پہنچوں گی نا تو اس کا سارا غرور خاک میں ملا دوں گی۔ اسے نہیں پتا کہ اس کا پالا اب ہیرا سے پڑا ہے۔ رات بھر ہیرا کو نیند نہیں آئی تھی۔ وہ مایا کی رپورٹس اور ان سوالوں کے بارے میں سوچتی رہی جو اسے کل اس شخص سے کرنے تھے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایک قدم اسے کس آگ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ شہر کے سب سے مہنگے بزنس ٹاور کی آخری منزل پر خاموشی کا راج تھا، جہاں ارباز احمد کا آفس واقع تھا۔ ہیرا نے تیزی سے چلتے ہوئے سیکرٹری کو نظر انداز کیا اور دہاڑتے اسے کیبن کا دروازہ کھولا تو سامنے بڑی سی میز کے پیچھے سیاہ کرسی پر وہ شخص بیٹھا تھا جس کی تصویر کل سے ہیرا کے ذہن میں آگ لگا رہی تھی۔ ارباز نے دھیرے سے فائل پر سے نظریں ہٹائی اور اپنی گہری عقابی نظریں سامنے کھڑی اس لڑکی پر جمائی جو کہ غصے سے تل ملا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی چمک دیکھ کر ارباز کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ رنگ گئی، جیسے اسے بہت کوئی دلچسپ چیز مل گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی ارباز احمد؟ ہیرا نے تیکھے لہجے میں چلاتے ہوئے فائل میز پر پٹکی۔ تم جیسے لوگ سمجھتے ہو کہ دولت اور طاقت کے بلبوتے پر تم کسی کی بھی عزت سے کھیل کر اسے حاملہ کر کے سڑک پر چھوڑ سکتے ہو؟ ارباز احمد بڑے اطمینان سے اپنی کرسی سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہیرا کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد اس قدر لمبا تھا کہ ہیرا کو بات کرنے کے لیے اپنی گردن اوپر اٹھانی پڑی تھی۔ ارباز کی شخصیت سے اٹھنے والی خوشبو ہیرا کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ میرے کمرے میں اس طرح بدتمیزی سے داخل ہونے کی اجازت کس نے دی ہے تمہیں؟ ارباز نے نہایت دبی اور روبدار آواز میں کہا۔ اور دوسری بات کہ جس لڑکی کا تم ذکر کر رہی ہو میں اس کا نام تک نہیں جانتا، تو یہ حاملہ ہونے کا قصہ کہاں سے کھڑا کر لائی ہو؟ جھوٹ مت بولو، تم اس کے ہونے والے بچے کے باپ ہو۔ ہیرا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں وومن رائٹس NGO سے اور میں تمہیں جیل بھجوا کر ہی دم لوں گی۔ ارباز نے ایک اچانک حرکت کی اور ہیرا کے بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اسے اپنی طرف کھینچا تو ہیرا کا وجود اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ بہت بولتی ہو تم۔ ارباز نے اس کے چہرے
इतना करीब होकर कहा कि हीरा को उसकी गर्म सांसों की तपिश अपने गालों पर महसूस हुई। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम किससे टकरा रही हो? मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हें यहाँ से गायब कर सकता हूँ। छोड़े मुझे, बदतमीज इंसान। हीरा ने तड़प कर अपना बाजू छुड़ाना चाहा, मगर अरबाज की गिरफ्त और भी मजबूत हो गई। उसने हीरा की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा मजीद ऊपर उठाया और उसकी आंखों में छुपी उस बेबाकी को देखने लगा जो उसे मसहूर कर रही थी। तुम्हारी ये आंखें बहुत खूबसूरत है लड़की, लेकिन इनमें गुस्सा जचता नहीं है। अरबाज ने सरगोशी के से अंदाज में कहा तो हीरा का पूरा वजूद जैसे सनसना उठा। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए और मैं तुम्हें अपनी किसी ख्वाहिश का हिस्सा बना लूं। अरबाज ने उसे एक झटके से छोड़ा तो हीरा के कदम लड़खड़ाए। वो तेजी से पलटी और बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। उसे अपनी कलाई पर अब उसके लम्स की शिद्दत महसूस हो रही थी। उसका दिल हथौड़ों की तरह बज रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके गुस्से से डर रही थी या उसकी उस पुरस्कार शख्सियत के शहर में गिरफ्तार हो रही थी। बाहर निकलकर उसने गहरा सांस लिया और अपनी कलाई को देखा जहां अरबाज की उंगलियों के निशान अब भी वाज़ेह थे। वो जितना उससे नफरत करना चाहती थी उसका दिल उसकी तरफ उतना ही मायल हो रहा था, मगर उसने अहद किया कि उस शैतान सिफ्त इंसान को सबक सिखा कर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। एनजीओ के दफ्तर में एसी की ठंडक के बावजूद हीरा के माथे पर पसीना चमक रहा था। वो मुसलसल माया की फाइल उलट पुलट कर रही थी, मगर उसका जहन अरबाज अहमद के उस लम्स और उसकी उन पुरस्कार आंखों में उलझ कर रह गया था। 2 दिन गुजर चुके थे मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा था और ना ही कोई गवाह सामने आ रहा था। हीरा को लग रहा था कि वो एक ऐसी दीवार से टकरा रही है जो उसे पाश पाश कर देगी। आखिर ये शख्स है क्या चीज़? हीरा ने झिंझलाकर फाइल मेज पर पटकी। ना कोई सबूत मिल रहा है और ना ही ये माया फोन उठा रही है। कि इस अरबाज ने उसे गायब तो नहीं करवा दिया? इसी बेचैनी में उसने फैसला कर लिया कि वो एक बार फिर उसके किले में दाखिल होगी और इस बार वो खाली हाथ नहीं जाएगी। उसने अपने बैग से वो धमकी अमेज नोट्स रखा जो उसने पुलिस की तरफ से तैयार करवाया था और फिर तेजी से उसके ऑफिस की तरफ रवाना हो गई। जब वो अरबाज के केबिन में पहुंची तो वो फोन पर किसी से बड़ी सख्ती से बात कर रहा था। हिरा को देखकर उसने फोन काट दिया और कुर्सी की पुछ से टेक लगाकर उसे फातिहाना नजरों से देखने लगा। तो तुम दोबारा आ ही गई। मैं जानता था तुम मेरे शहर से इतनी जल्दी नहीं निकल पाओगी। खुशफहमी मत रहो अरबाज अहमद, हीरा ने तीखे लहजे में कहा और पुलिस का नोट्स उसके सामने रखा। अगर तुमने माया को छुपाने की कोशिश की है तो याद रखना, ये नोट्स तुम्हारी बर्बादी का पहला कदम होगा। मैं तुम्हें सलाखों के पीछे देखना चाहती। अरबाज एकदम उठा और एक ही जिस्म में मेज के गिर्द घूमकर हीरा के सामने आ गया। इससे पहले कि हीरा पीछे हटती उसने एक झटके से उसे अपने बाजू से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया। हीरा का पूरा वजूद उसके हिसार में कैद हो गया था। उसकी सांसें अरबाज के सीने से टकराकर वापस आ रही थी। तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने का? अरबाज ने अपना एक हाथ हिरा के सर के पास दीवार से टिकाया और उसके चेहरे के इतना करीब हुआ कि उनके लबों के दरमियान सिर्फ 1 इंच का फासला रह गया था। तुम कहती हो कि मैंने माया के साथ गलत किया, उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। हिरा की आंखों में खौफ और एक अनजानी तपिश सी फैल गई थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वो अभी बाहर आ जाएगा। हाँ, तुमने यही किया है, तुम एक दरिंदे हो। हिरा ने लड़ती आवाज में एहतजाज किया तो अरबाज के लबों पर एक फातिहाना और सफाकाना मुस्कुराहट उड़ी। उसने अपनी पूरों से हिरा के घाल को छुआ जो कि गुस्से और शर्म से सुर्ख हो रहे थे। ठीक है, अगर तुम यही कहती हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ भी वही करता हूँ जो तुम कहती हो कि मैंने माया के साथ किया है। हिरा का सांस हलक में अटक गया था। तुम तुम ये क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुनना चाहती हो। अरबाज ने उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे मजीद अपने करीब कर लिया था। अगर मैंने माया से ताल्लुक कायम किया था तो मैं तुम्हारे साथ भी वही कर सकता हूँ। आखिर तुम भी तो एक औरत हो और मैं एक मर्द, और सच तो यह है कि तुम उस माया से कहीं ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश हो। हीरा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने दोनों हाथ अरबाज के सीने पर रखकर उसे पीछे धकेलना चाहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते अरबाज अहमद, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। तुम अब मेरे लिए आम नहीं रही हो हिरा। अरबाज ने उसके माथे पर अपनी पेशानी टिकाई और दबी आवाज में कहा,
तुम्हारी ये बेबाकी, तुम्हारा ये गुस्सा मुझे पागल कर रहा है। मैंने आज तक जो चाहा वो हासिल किया है, और अब मेरा दिल कहता है कि मुझे तुम चाहिए हो, माया नहीं, सिर्फ तुम। अरबाज ने उसके हाथ की पुश्त पर अपने लबों का तपता हुआ लम्स छोड़ा तो हीरा का पूरा वजूद जैसे लर्ज उठा। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। वो उसके जुनून के सामने बेबस हो रही थी। अरबाज ने उसे एक लम्हे के लिए अपने गिरफ्त में भींचा और फिर उसे छोड़कर पीछे हट गया। अब जाओ यहाँ से, अरबाज ने सर्द लहजे में कहा, मगर उसकी आंखों में अब भी वही आग थी। हीरा बिना कुछ के बदवासी से वहां से भाग गई। उसे अपनी कलाई पर अब भी उसकी गिरफ्त की तपिश महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस शख्स से नफरत करे या उसकी उस दीवानगी पर फिदा हो जाए जिसने उसे एक पल में मौम कर दिया था। वक्त गुजरता जा रहा था। अब हीरा का माया से राब्ता हो गया था और माया ने भी कुछ सबूत पेश कर दिए थे जिससे हीरा को सुकून मिला था, क्योंकि सबूतों के साथ उसे जेल की सलाखों के पीछे बड़ी आसानी से भिजवा सकती थी। लेकिन उसने एक प्लान बी भी सोच रखा था कि अगर अब भी वो शख्स ना माना और माया से निकाह की हामी ना भरी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें माया बताएगी कि वो सच्ची है। शुरू में माया प्रेस कॉन्फ्रेंस से डर रही थी, लेकिन फिर मान गई और उन्होंने मजीद सबूत इकट्ठे करने के बाद अब माया के साथ अरबाज के ऑफिस जाना था। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब दोनों उसके ऑफिस में मौजूद थी। मिस्टर अरबाज अब एक मासूम लड़की को मोहब्बत की जाल में फंसाते हैं, उससे बगैर शादी के ताल्लुक कायम करते हैं और फिर उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं। आपका कहना है कि आपने किया ही क्या है? यानी आपके नज़दीक ये कोई गुनाह या जुर्म नहीं है? वुमेन राइट्स का प्रचार करती वो एक बार फिर उस पर चिल्ला रही थी। आपको समझ के नहीं आता कि लड़की झूठ बोल रही है? वो झिंझलाया था। ये मेडिकल रिपोर्ट्स झूठी नहीं है। हिरा ने एक फाइल टेबल पर पटकी और मुस्कुराई। आज वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। अरबाज अहमद का बचपना बचना नामुमकिन था। उसने खशमगीन निगाहों से उस लड़की को देखा जिसे वो जानता तक नहीं था, मगर वो उसके होने वाले बच्चे की माँ बनने का दावा कर रही थी। मगर अरबाज अब भी नहीं मान रहा था। जब हीरा ने निकाह का कहा तो वो ऑफिस से बाहर हो गया और गार्ड के जरिए उन दोनों को ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। एनजीओ के दफ्तर में गहमा गहमी अरोज पर थी। हीरा ने माया के साथ मिलकर शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिया था। वो बार बार माया को हौसला दे रही थी कि आज उस बिजनेस टाइकून का गुरूर मिट्टी में मिल जाएगा। माया ने आंखों में मसनूई आंसू लाते सर हिलाया, मगर उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। तुम बस हिम्मत मत हारना, ओके? हिरा ने उसका हाथ थपथपाया। आज पूरा शहर देखेगा कि अरबाज अहमद कितना गिरा हुआ इंसान है। अभी वो माया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के नुकात समझा ही रही थी तो उसकी फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। उसकी माँ की कॉल थी। हेलो बेटा, तुम कहाँ हो? जल्दी घर आओ, तुम्हारी खाला आई है। माँ की आवाज़ में बिला की खुशी थी। हिरा ने माथे पर हाथ फेरा। कौन सी खाला अम्मी? मैं अभी बहुत मसरूफ़ हूँ। अरे वही, तुम्हारे नाना की दोस्त की बेटी रज़िया, मेरे बचपन की सहेली है। इतने बरसों बाद आज मार्केट में मिली थी तो मैंने उन्हें घर बुला लिया। वो अपने बेटे के साथ आई हैं। तुम बस 10 मिनट के लिए आ जाओ, वो लोग तुम्हारा ही पूछ रहे हैं। हिरा ने घड़ी देखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी 1 घंटा बाकी था। उसने सोचा कि वो घर करीब ही है, 10 मिनट में मिलकर वापस आ जाऊंगी। उसे माँ से कहा कि वो तैयारी करे और वो खुद तेज़ी से घर की तरफ रवाना हो गई। जब वो अपने घर के ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो उसके पैरों तले से जैसे ज़मीन निकल गई। सामने सोफे पर वही शख्स बैठा था जिसकी बर्बादी का सामान वो अभी दफ्तर में कर आई थी। सफ़ेद सूट में मलबूस अरबाज अहमद बड़े इत्मीनान से चाय का कप थामे उसकी माँ से बातें कर रहा था। रज़िया बेगम ने मुस्कुराकर हीरा को देखा। आओ बेटा, देखो, ये मेरा बेटा है अरबाज। हीरा का सांस हलक में ही अटक गया था। उसकी नज़रें अरबाज से मिली जिसकी नज़रों में एक फातिहाना चमक और लबों पर मुआयनी खेस मुस्कुराहट थी। हीरा को एक पल में समझ आ गया कि ये वो औरत है जो इसकी माँ की बेहतरीन सहेली है। इसका मतलब था कि अरबाज कोई अजनबी नहीं बल्कि फैमिली का हिस्सा बन चुका था। उसने फ़ौरन अपनी जेब से फ़ोन निकाला और किचन की तरफ भागते हुए ऑफिस कॉल की। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी के लिए अभी कैंसिल कर दो, मैं बाद में बताऊंगी, बस इसे रोक दो। दूसरी तरफ माया ये सुनकर तिलमिला कर आ गई। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। ये क्या हुआ? मेरा तीर निशाने से लगने से पहले ही गिर गया। माया ने दिल में सोचा। उसे अंदाजा हो गया था कि उसका खेल अब
ختم ہونے والا ہے۔ گھر میں ہیرا کی ماں نے اسے کچن میں کچھ بنانے کے لیے بھیج دیا۔ ہیرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ سوچ سوچ کر کھو چکی تھی کہ جس پر وہ الزام لگا رہی ہے وہ تو اس گھر میں مہمان بن کر بیٹھا۔ ابھی وہ پیالیاں سیٹ کر ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ارباز احمد وہیں کھڑا سے دیکھ رہا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، تمہارا آفس نہیں۔ ہیرا نے اسے پیچھے دھکا دینے کی کوشش کی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ باہر جاؤ۔ ارباز نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تم پریس کانفرنس کروا رہی تھی نا مایا کے ساتھ مل کر؟ شکر کرو کہ تم بچ گئی ہو، ورنہ آج تمہاری NGO اور تمہارا کریئر دونوں ختم ہو جاتے۔ ہیرا نے غصے سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم ابھی تک جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ میڈیکل رپورٹس کیا تھی؟ ارباز نے ایک ٹھنڈا کہکا لگایا۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے ہیرا، کیونکہ اگر تم وہ پریس کانفرنس کروا دی تو اس وقت تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتی۔ وہ مایا جسے تم معصوم سمجھ رہی ہو دراصل میرے بزنس حریف کی سب سے ہائر کی گئی محض ایک ماڈل ہے جس کا کام مجھے بدنام کرنا ہے۔ مجھے آج دوپہر میں اس کا سارا کچا چٹا معلوم ہو چکا تھا، لیکن میں نے تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس حد تک جاتی ہو۔ ہیرا کا چہرہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ اچھا، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے اسے پوچھا۔ ثبوت تمہیں کل میرے آفس میں ملیں گے۔ ارباز نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ کل صبح مایا کو ساتھ لے کر میرے آفس آنا۔ اسے کچھ مت بتانا، بس اسے کہنا کہ ہم ارباز سے آخری بار ملنے جا رہے ہیں۔ اگلی صبح ہیرا مایا کو لیے جب ارباز کے آفس پہنچی تو مایا بہت پر اعتماد تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید ارباز ڈر کر سمجھوتا کرنے والا ہے۔ ارباز اپنی کرسی پر بیٹھا خاموشی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے وہ دونوں بیٹھی ارباز نے اپنے میز پر رکھا ایک ریکارڈنگ آن کیا۔ ریکارڈنگ میں ایک مردانہ آواز گونجی جو صاف طور پر ارباز کے بزنس کے دشمن کی تھی۔ وہ مایا کو ہدایت دے رہا تھا۔ مایا، یاد رکھنا، حاملہ ہونے کا ڈرامہ ایسا کرنا ہے کہ ارباز کی ساکھ مٹی میں مل جائے۔ تمہیں اس کے بدلے 5 لاکھ ملیں گے، بس پریس کانفرنس میں رونا مت بھولنا۔ مایا کے جوابات بھی صاف تھے جبکہ وہ اسٹیل پر خوش ہو رہی تھی۔ مایا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے اٹھی مگر ہیرا نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ تم جیسی عورتوں کی وجہ سے اصلی مظلوم عورتوں کو انصاف نہیں ملتا۔ میں نے تمہارے ساتھ دیا، میں ایک شریف انسان پر اتنا بڑا الزام لگایا صرف تمہارے جھوٹ کی وجہ سے۔ ہیرا کی آواز میں ندامت اور غصہ دونوں تھے۔ ارباز خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ہیرا کی اس ہمدردی پر مچلنے لگا تھا جو اب اس کے لیے دکھا رہی تھی۔ پھر مایا روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ کمرے میں صرف وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ ہیرا نے نظریں جھکا لی تھی۔ مجھے معاف کر دیں ارباز احمد، میں نے آپ کے بارے میں بہت غلط کیا، بہت غلط سوچا۔ ارباز اپنی کرسی سے اٹھا اور ہیرا کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے بڑی محبت سے ہیرا کے آنسو پوچھے۔ تمہاری نیت صاف تھی ہیرا، اس لیے خدا نے تمہیں بچا لیا۔ اب بتاؤ، کیا اب میں تمہیں لگتا ہے کہ میں وہی درندہ ہوں جس کا تم ذکر کر رہی تھی؟ ہیرا نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک انوکھا سا اعتراف تھا۔ ارباز نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لینا چاہا تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ارباز احمد صرف ایک طاقتور انسان ہی نہیں بلکہ ایک سچا مرد بھی ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہے۔ آفس کے اس خاموش کمرے میں مایا کے جانے کے بعد فضا جیسے تھم سی گئی تھی۔ ہیرا کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی اور ارباز اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ ہیرا نے اپنا بیگ سنبھالا اور مڑنے لگی تاکہ اس شرمندگی کے حصار سے نکل سکے، لیکن ارباز کی آواز نے اس کے قدم روکے اور مجبور کر دیا۔ کہاں جا رہی ہو ہیرا؟ ابھی تو حساب برابر نہیں ہوا۔ ارباز نے بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، تم نے مجھ پر اتنے سنگین الزامات لگائے، میرا سکون برباد کیا، اب بس ایک معذرت کر کے جا رہی ہو؟ ہیرا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی تیکھا پن تھا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں مسٹر ارباز احمد؟ میں نے معافی مانگ تو لی ہے اور وایا کو آپ کے اس کے انجام تک بھی پہنچا دیا ہے، اب مزید کیا باقی ہے؟ ارباز دھیرے سے چلتا اس کے قریب آیا اور اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ اپنا نمبر دے دو، تم جیسی شیرنی کی مجھے کہیں نہ کہیں ضرورت رہے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوبارہ مجھے کسی ایسے جال میں پھنسانے کی کوشش کرے اور تم میرے دفاع کے لیے موجود بھی نہ ہو۔
हिरा के लबों पर एक बेख्तियार सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खामोशी से फ़ोन थामा और अपना नंबर डायल कर दिया और उसे वापस दे दिया। नंबर तो मैं दे रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा, मैं सिर्फ सच का साथ देती हूँ, किसी बिजनेस टाइकून का नहीं। वो ये कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई और अरबाज उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराता रहा। उसे पता था कि ये लड़की अब उसकी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनने वाली है। अगले एक हफ्ते तक हिरा का मोबाइल फ़ोन जैसे अरबाज की मलकियत बन गया था। वो दिन में कई बार उसे हेलो या क्या हाल है कि मैसेज करता, मगर हिरा अपनी अना बरकरार रखते उसे घंटों इग्नोर करती थी। वो मैसेज देख लेती थी, लेकिन जवाब एक दो दिन बाद देती थी, ताकि उसे एहसास हो कि वो इतनी आसानी से हाथ आने वाली नहीं है। एक रात हीरा अपने बेड पर लेटी किताब पढ़ रही थी जब फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। अरबाज का मैसेज था, इतनी खामोशी अच्छी नहीं है हीरा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊं और तुम्हारी अम्मी से तुम्हारी इस बेरुखी की शिकायत कर दूं। हीरा ने फ़ोन उठाया, टाइप किया, आपको कोई काम नहीं है क्या जो हर वक्त मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं? मैं एक एनजीओ वर्कर हूँ, बहुत मसरूफ़ रहती हूँ। दूसरी तरफ से फ़ौरन जवाब आया, मसरूफ़ तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन तुम्हारे एक रिप्लाई के लिए इंतज़ार में मेरे सारे काम सारे कामों से ज़्यादा अहम है। बस तुम जवाब देती रहा करो ना, चाहे देर से ही सही, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा नाम स्क्रीन पर देखकर। हीरा का दिल एक लम्हे के लिए जैसे धड़कना भूल गया। उसने सोचा कि शख्स कितना अजीब है, कभी इतना सख्त बन जाता है और कभी इतना नरम कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। उसे फ़ोन साइड पर रख दिया, मगर उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट उसके दिल का हाल बयान कर रही थी। अगले दिन सुबह सवेरे हीरा की माँ के फ़ोन की घंटी बजी। रज़िया बेगम की कॉल थी। दोनों सहेलियों की तवील गुफ्तगू के बाद हीरा की माँ कमरे में आई, खुशी से चहकते हुए कहा, बेटा बहुत बड़ी खुशखबरी है। रज़िया का फ़ोन था, उनके बड़े बेटे की शादी है 1 हफ्ते बाद, और उन्होंने हमें पूरे फंक्शंस के लिए मदऊ किया है। उन्होंने कहा है कि अब हम कोई गैर नहीं है, बल्कि फैमिली है, तुम्हें हर सूरत पाँव होना है। हीरा का दिल ज़ोर से धड़का। उसे पता था ये सब अरबाज की प्लानिंग है। अभी वो अपनी माँ की बात सुनकर फारिगी हुई थी कि अरबाज का मैसेज आ गया। मेरी माँ का हुक्म तो मिल गया होगा, अब मेरा बुलावा भी सुन लो। मेरे भाई की शादी में तुम्हें सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगना है, क्योंकि वहाँ सबकी नज़रें मुझ पर होंगी और मेरी नज़रें सिर्फ तुम पर। हीरा ने झिरझिरी ली और दिल में सोचा कि ये शख्स मुझे पागल कर देगा। उसे जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था कि देखा जाएगा, और फ़ोन बंद कर दिया। अरबाज को एहसास हो रहा था कि अब वो इस शादी के बहाने उसके और करीब होने वाली है, और जहाँ उनके दरमियान की ये तकरार एक नया रुख इख्तियार करेगी। रात के तक हीरा यही सोचती रही कि वो शादी में क्या पहनेगी और अरबाज उसे किस तरह तंग करेगा। और दूसरी तरफ अरबाज अपने टेरेस पर खड़ा तारों को दिख रहा था। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि बस ये लड़की ऐसे उसके रास्ते में रहे, ताकि उसे धीरे धीरे अपने जुनून के रंग में रंग दे। उसे अपनी जीत अब बहुत करीब लग रही थी। पूरे 1 हफ्ते की बेचैनी और मोबाइल स्क्रीन पर जमाए रखने के बाद आंखें आखिरकार वो मेहंदी का दिन भी आ ही गया। हिरा अपने कमरे के भरे आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। मस्टर्ड कलर के कामदार शलवार कमीज में वो किसी खिलते हुए फूल जैसी लग रही थी। कलाइयों में भरी भरी कांच की चूड़ियाँ उसकी ज़रा सी हरकत पर छनक उठती थी। उसने अपना मस्टर्ड दुपट्टा कंधों पर सेट किया हुआ था और बालों की एक लंबी चुटिया बना दी थी। आईने में अपना अक्स देखते उसे बेख्तियार अरबाज का वो मैसेज याद आया कि तुम्हें सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगना है। हिरा के लबों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट रेंगी। पागल इंसान, पता नहीं खुद को क्या समझता है, मैं क्यों उसके कहने पर इतना तैयार हो रही हूँ। उसे खुद को झारा, अगर दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश दबी थी कि जब वो उसे देखे तो देखता रह जाए। हीरा बेटा जल्दी आओ, रज़िया की कॉल आई है, वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। नीचे से अम्मा की आवाज़ आई तो हीरा ने आखिरी बार लिपस्टिक दुरुस्त की और दौड़ती हुई नीचे पहुंच गई। शाजिया और हीरा जब अरबाज के घर पहुंची तो बाहर लॉन में गेंदे के फूलों ने समा बांध रखा था। गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले अरबाज ही नजर आया था, जो सफ़ेद कलफ लगे कुर्ते और वास्केट में खसब डा रहा था। उसे जैसे ही हीरा को देखा, उसकी नज़रें वहीं जम कर रह गई। हीरा ने नजरें झुका ली, मगर उसे अपनी शाहरग पर अरबाज की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम खालाजान, कैसी हैं आप? अरबाज ने हीरा की माँ के करीब आकर बड़े अदब से सलाम किया।
और उन्हें अंदर ले जाने लगा। अंदर दालान में रज़िया बेगम मेहमानों में घिरी हुई थी। शाज़िया को देखते ही वो गले मिली और दोनों सहेलियां पुरानी बातों में मगन हो गई। अरे हीरा बेटा, तुम यहाँ हम बड़ों में क्या कर रही हो? अरबाज, इसे ले जाओ अपनी कजन्स के पास, यहाँ ये बोर हो जाएगी। रज़िया बेगम ने बेटे को इशारा किया तो अरबाज के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई। जी अम्मी, मैं ले चलता हूँ इसे। उसने हीरा को आंखों से इशारा किया और हीरा खामोशी से उसके पीछे चल दी। लेकिन अरबाज उसे उस तरफ नहीं लेकर गया था जहाँ शोरो गुल था, बल्कि उसे लॉन के उस हिस्से में ले आया जहाँ घनी बेलों के बीच एक छुपी हुई दीवार थी। तुम यहाँ क्यों लाए हो? सब वहाँ है। हीरा ने घबराकर पीछे हटना चाहा, मगर अरबाज ने तेजी से उसका हाथ थाम कर उसे दीवार के साथ लगा दिया। हीरा का वजूद उसके लिए उसके हिसार में कैद हो गया था। मैंने कहा था ना, एक गजब टाना है, और तुमने तो मेरी जान लेने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। अरबाज ने उसके चेहरे के इतना करीब होकर कहा कि हीरा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। छोड़े मुझे, कोई देख लेगा। हीरा ने तीखे लहजे में एहतजाज किया, मगर उसकी आवाज़ लर्ज रही थी। अरबाज ने उसकी चूड़ियों भरी कलाई को थोड़ा और खींचा और उसके कान के पास झुक गया। देख लेने दो, आज तुम्हें देखकर मेरा वैसे भी जब्त जवाब दे रहा है। ये मस्टर्ड रंग तुम पर नहीं जच रहा, बल्कि तुम इस रंग में जच रही हो। हाँ, बहुत बदतमीज है। हीरा ने से पीछे धक्का दिया और वहां से तेजी से निकल गई, मगर उसके गालों की सुर्खी बता रही थी कि अरबाज का वार निशाने पर लगा है। मेहंदी की तकरीब में अरबाज बार बार अपनी माँ के बहाने हीरा को हल्ला गुल्ला करने के लिए बुलाता रहा। आखिरकार हीरा को सबके सामने बैठना ही पड़ा था, जहाँ ढोलक की थाप पर अरबाज की नजरें मुसलसल उसका ताक़ुब कर रही थी। रात के जब वो घर जाने लगे तो अरबाज गाड़ी तक छोड़ने आया था, और जब शाज़िया बेगम दूसरी तरफ मसरूफ़ हो गई तो उसने हीरा के करीब होकर सरगोशी की। कल बारात है हीरा, कल भी इसी तरह गज़ब बन कर आना, क्योंकि कल मैंने एक बहुत बड़ा फैसला करना है। हीरा ने उसे एक गहरी नज़र से देखा और बिना कुछ के गाड़ी में बैठ गई। अगली सुबह अरबाज के घर में शोर शराबा था। बारात की तैयारियां रोज पर थी, मगर अरबाज बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसे भाई की शादी से ज़्यादा हीरा के आने का इंतज़ार था। रज़िया बेगम अपने बेटे की बेचैनी भांप चुकी थी और दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। उधर हीरा ने आज बारात के लिए मैरून कलर का शरारा पहन रखा था। बालों को एक तरफ करके हल्का फुल्का सा मेकअप करके उस सचमुच किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। जब वो हॉल में दाखिल हुई तो अरबाज की निगाहें वही थम गई। वो ब्लैक कलर की शलवार कमीज में मलबूस बाहाल के दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही हीरा करीब आई, अरबाज अपनी माँ का हाथ थमा और दबी आवाज में कहा, अम्मी देख लें, ये है आपके होने वाली बहू। मैंने फैसला कर लिया है, हीरा के सिवा इस घर में कोई और नहीं आएगी। रज़िया बेगम ने हीरा को देखा और उनके चेहरे पर ममता भरी मुस्कुराहट आ गई। बेटा, अभी ये शादी हो जाने दो, फिर मैं खुद शाजिया से जिक्र करूंगी। वो मेरी बचपन की सहेली है, उससे अच्छा रिश्ता और क्या होगा। फंक्शन के दौरान अरबाज ने हीरा को एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया था। वो बार बार उसके पास आता, कभी पानी के बहाने तो कभी कुछ पूछने के बहाने। हीरा शर्मा कर रह जाती, मगर उसे ऐसा इसे अच्छा लग रहा था कि अरबाज सबके सामने इस पर अपना हक जता रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कल वलीमे पर एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उनके इस खूबसूरत आगाज को नजर लगा देगा। वलीमे की शाम हीरा के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। पहले 2 दिनों में अरबाज की नजरें उसने जितना जताया था, उसने हीरा के दिल की तमाम दीवारें गिरा दी थी। वो आईने के सामने खड़ी अपनी ब्लैक नेट की साड़ी के पल्लू को कंधे पर सेट कर रही थी। स्याह रंग उसकी गोरी रंगत पर गजब ढा रहा था। बालों का ढीला सा जोड़ा बनाकर उसने एक तरफ सुर्ख गुलाब सजाया और कानों में लंबे झुमके पहने। मैं क्यों उसके लिए इतना बन ठन रही हूँ? उसने अपने अक्स से सवाल किया, मगर जवाब उसे मालूम था। वो आज अरबाज अहमद की नज़रों में वो ख़ास चमक देखना चाहती थी जो सिर्फ उसके लिए मखसूस थी। उधर वलीमे के आलिशान हॉल में अरबाज सफ़ेद शर्ट और साथ 3 पीस सूट में मलबूस वजीहा लग रहा था। वो बार बार हॉल के दाखिली दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे ही हीरा अपनी माँ के साथ हॉल में दाखिल हुई। पूरे हॉल में एक सख्ता सा था गया। स्याह साड़ी में लिपटी वो क़यामत लग रही थी। अरबाज की नज़रें हीरा पर जम गई थी।
उसने अपनी माँ के कान में सरगोशी की। अम्मी, अगर आज मैंने इसे सबके सामने अपना ना कहा तो शायद मैं खुद पर काबू न रख पाऊँ। रज़िया बेगम ने बेटे का हाथ थपथपाया। सब्र करो मेरे शेर, बस ये फंक्शन ख़त्म हो जाए, मैं शाज़िया से बात करूँगी। जब हीरा अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठी तो अरबाज दूर से उसे देख रहा था। हीरा ने एक लम्हे के लिए नज़रें उठाई और उसकी नज़रें मिली। अरबाज ने हल्का सा सर झुकाकर उसे दाद दी, जिस पर हीरा के गाल टिमटिमा उठे। थोड़ी देर बाद जब शाज़िया बेगम किसी काम से दूर गई तो अरबाज मौका पाते हीरा के पास पहुंच गया। उसके इतना करीब खड़ा हुआ कि हीरा को उसके सीने की धड़कन साफ सुनाई देने लगी। स्याह रंग पहनकर तुमने आज मुझ पर सितम ढाया है हीरा, अरबाज ने उसके कानों में करीब झुककर नाहिद दबी और तीखी आवाज में कहा। ये सारी तुम पर नहीं, तुम्हारे हुस्न पर जच रही है, और मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हें अभी यहाँ से उठाकर कहीं दूर ले जाऊं, जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। बदतमीज, शर्म करें, सब देख रहे हैं। हीरा ने अपने साड़ी का पल्लू संभाला और घबरा कर इधर उधर देखा, मगर उसकी आंखों की हया अरबाज के जुनून को हवा दे रही थी। देखने दो, सबको पता होना चाहिए कि बादल सिर्फ मेरी जमीन पर बरसेगा। अरबाज ने उसकी आंखों में झांका। आज रात अम्मी ने खाला से बात करनी है, तैयार रहना। अभी वो दोनों इस जज्बाती लम्हे में खोए ही हुए थे कि अरबाज को किसी ने काम से बुला लिया और नागवारी से वहां चला गया, लेकिन उसकी नजरें अब भी दूर से हीरा पर ही थी। उस दौरान हीरा के करीब एक लड़का आया जो शायद अरबाज का कोई दूर का कजन या बिजनेस पार्टनर का बेटा था। वो नशे में धुत लग रहा था, या शायद उसकी फितरत ही ऐसी थी। वाह, क्या साड़ी है, और क्या चामट ढाने वाली हसीना। उस लड़के ने हीरा के करीब आकर नहायत गलीज जुमला कसा। इतनी खूबसूरत साड़ी इस तरह अकेले में अच्छी नहीं लगती, अगर थोड़ा सा साथ मिल जाए तो क्या बात होगी। हीरा का खून खौल उठा। उसने गुस्से से उस लड़के को देखा। अपनी जुबान को लगाम दे, वरना मैं आपको वहीं पहुंचा दूंगी जहां आपकी जगह है। लड़का हंसा और उसने हिम्मत दिखाते हुए हीरा की साड़ी के पुल्लू को छूने की कोशिश की। अरे, गुस्सा क्यों करती हो जाने मन, इस स्याह रंग में तुम और भी तीखी लग रही हो। हीरा ने आओ देखा ना ताओ एक भरपूर थप्पड़ उसके लड़के के मुंह पर रसीद कर दिया। पूरे हाल में थप्पड़ की गूंज सुनाई दी और सबकी नजरें उनकी तरफ उठ गई। वो लड़का बौखला गया था और गुस्से में पागल होकर उसने हीरा पर हाथ उठाना चाहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। जैसे ही उसका हाथ फिजा में बुलंद हुआ, एक लोहे जैसे कृष्ण ने उसका बाजू बीच में ही दबोच लिया। वो अरबाज था, जिसकी आंखें खून ख्वार हो चुकी थी। मेरी मौजूदगी में तुमने इस पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की। अरबाज की आवाज में वो गर्ज थी कि पूरा हाल लर्ज गया। अरबाज ने बगैर कुछ सोचे समझे उस लड़के पर मुक्कों की बारिश कर दी। उसे बुरी तरह से पीट रहा था, जैसे उसे जान से मार देगा। हीरा साड़ी का पल्लू थामे आंखों में आंसू लिए अरबाज को रोक रही थी, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। सब देख रहे थे। हॉल में अफरा तफरी मच गई थी। लोग छुड़वाने आए थे, मगर अरबाज का गुस्सा आसमान से बातें कर रहा था। अचानक शाजिया बेगम भागती हुई आई और हीरा को संभाल दिया। हीरा बुरी तरह से रो रही थी और कांप रही थी। अरबाज ने जब उस लड़के को लहू लुहान कर दिया तो वो हीरा की तरफ पड़ा। तुम ठीक हो? उसने उसका कंधा थामना चाहा, मगर हीरा ने उसे झड़क दिया। बस करें, आप हर जगह सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही कर सकते हैं। हीरा ने रोते हुए कहा, आपका ये जुनून, ये तशद्दुद मुझे पसंद नहीं है। मेरे लिए आज का ये दिन आपने बर्बाद कर दिया। हीरा अपनी माँ का हाथ पकड़ कर रोती हॉल से बाहर निकल गई, जबकि अरबाज वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी मुट्ठियां अब भी भींची हुई थी और दिल में ये दुख था कि वो जिसकी हिफाजत के लिए लड़ रहा था उसे गलत समझ गई है। वलीमे की उस नाखुशगवार वाक़े के बाद हीरा ने जैसे अपने गिर्द एक दीवार खड़ी कर ली थी। उसने अरबाज के दर्जनों मैसेजेस देखे थे, मगर उसका एक भी जवाब नहीं दिया था। वो उसका नंबर ब्लॉक करना चाहती थी, मगर न जाने कि उसका हाथ रुक जाता था। वो इससे नफरत करना चाहती थी, मगर वलीमे की उस रात अरबाज की आंख में अपने लिए जो तड़प और तहफ़्फ़ुज़ देखा था, वो इसे सोने नहीं देता था। दूसरी तरफ अरबाज भी उसे तरपाने का फैसला कर गया था। जब फ़ोन पर बात ना बनी तो उसने वही रास्ता इख्तियार किया जो सीधा मंजिल तक जाता था। अगली इतवार हीरा अपने कमरे में फाइलें दुरुस्त कर रही थी जब उसे नीचे से अपनी माँ के रोने की आवाज़ आई। वो बदहवासी में नीचे भागी तो शाज़िया बेगम सोफे पर बैठी आंसू बहा रही थी और सामने रज़िया बेगम बैठी
ان کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ کیا ہوا ہے امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ہیرا نے تڑپ کر اپنی ماں کے گلے لگتے ہوئے پوچھا۔ شازیہ بیگم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا۔ بیٹا، میں تو ڈر گئی تھی کہ تمہارے لیے رشتہ کہاں سے لاؤں گی۔ میرے بچپن کی سہیلی نے آج تمہارے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا ہے۔ ارباز جیسا ہیرا تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ ہیرا، میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ میری زندگی کا بس اب ایک ہی خواب ہے کہ تم اس گھر میں رخصت ہوتے دیکھو، جہاں تمہاری قدر ہو۔ ہیرا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے رضیہ بیگم کی طرف دیکھا جن کی نظروں میں التجا تھی۔ بیٹا، میرا بیٹا ضدی ضرور ہے مگر وہ تمہارے لیے پاگل ہے۔ اس دن جو ہوا اس کی محبت کی ایک شدت تھی۔ وہ تمہیں کسی کی میلی نظر میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا تم اپنی ماں کی یہ خواہش پوری نہیں کرو گی؟ ہیرا کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں چھپی ممتا اور مجبوری کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ اسے خاموشی سے سر جھکا لیا، جس کا مطلب ہاں تھا، اور سمے ارباز کا میسج اس کی اسکرین پر لہرایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم بچ کر نہیں جا سکو گی۔ اب تم باقاعدہ میری ہونے والی ہو۔ منگنی کی رسم بہت سادگی سے ہوئی تھی، مگر رخصتی کے لیے ارباز نے کسی شاہی محل جیسا انتظام کیا تھا۔ شادی کا دن قریب آ رہا تھا اور ہیرا کے جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ جتنا ارباز سے دور بھاگنا چاہتی تھی، تقدیر اسے اتنا ہی کے قریب لے کے آ رہی تھی۔ رخصتی کی رات ہیرا نے اپنی پسند کا گہرا مہرون لہنگا پہنا تھا، جس بھاری کام ماتھے پر بڑا جھومر اور گلے میں ہار پہنے وہ سچ مچ بڑی لگ رہی تھی۔ اس کی سراپے سے ایک رویل فیل آ رہی تھی جو ارباز کی شخصیت کی شانہ شان تھی۔ جب وہ باہری گھونگھٹ نکالے اسٹیج پر بیٹھی تھی تو اسے اپنے قریب ارباز کے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ سیاہ شیروانی میں ملبوس وہ اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا۔ اتنا لمبا گھونگھٹ کیوں نکالا ہیرا؟ کیا اب بھی مجھ سے چھپنا چاہتی ہو؟ اس نے ہیرا کے کان میں سرگوشی کی تو ہیرا کا پورا وجود جیسے لرز اٹھا۔ خاموش نہیں، سب دکھ رہے ہیں۔ ہیرا نے دبی آواز میں احتجاج کیا، مگر اس بار اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک انوکھا سا اعتراف تھا۔ رخصتی کے وقت ہیرا اپنی ماں کے گلے لگ کر بہت روئی۔ اسے احساس تھا کہ آج اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، جہاں اسے ایک ایسے مرد کے ساتھ رہنا ہے جو اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ ارباز نے بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا، جو کہ پھولوں سے نہیں بلکہ سفید موتیے کے پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی رضیہ بیگم نے صدقہ اتارا اور ہیرا کو اس کے نئے کمرے کی طرف رخصت کیا، جو کہ ارباز کے ذوق کے مطابق بے حد سادہ مگر اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہیرا نے ایک گہرا سانس لیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ خواب ہے۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گمی تھی کہ دروازہ کھلا اور ارباز اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہیرا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ہیرا نے ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اٹھائی تو دیکھا ارباز کی آنکھوں میں وہی پرانی شدت تھی، مگر اس بار اس میں ایک مٹھاس بھی شامل تھی۔ ارباز نے جھک کر اس کا مہرون گھونگھٹ پیچھے کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ محبت کی پہلی تہمت تو تم نے مجھ پر لگائی تھی ہیرا، اب اس تہمت کو نبھانے کا وقت آ گیا۔ آج سے تم صرف میری ہو، میرا جنون، میری محبت، میری عزت۔ پھر اس نے بیڈ پر بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگا دیا تھا۔ ہیرا بولنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، مگر اس کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ اور پھر ارباز نے ہیرا سے وہ حق وصول کر لیا جو نکاح کے بعد اسے ملا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے جھک کر ہیرا کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیے اور اسے دھیرے سے اوپر اٹھایا۔ اب تو نظریں ملاؤ ہیرا، اب تو تم قانونی اور شرعی طور پر میری ہو چکی ہو۔ کیا اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ ارباز کی آواز میں وہی شدت تھی، مگر اس بار اس میں ایک مٹھاس بھی گھلی ہوئی تھی۔ ہیرا نے لرزتی ہوئی پلکیں اٹھائی تو ارباز کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ بے پناہ ستائش دکھتی جو اسے موم کرنے کے لیے کافی تھی۔ مجھے ڈر نہیں لگ رہا، بس مجھے سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہیرا نے دبی ہوئی آواز میں کہا تو ارباز نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ہیرا کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ جلدی کہاں ہو ہیرا؟ میں نے تو صدیوں تمہارا انتظار کیا ہے۔ اس دن جب تم نے مجھے تھپڑ مارنے کی کوشش کی تھی، اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ہاتھ اب صرف میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ارباز نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس رات ارباز نے اسے جتایا کہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اس کا پیار کسی طوفان کی طرح تھا
जो हीरा की तमाम अना को बहा कर ले गया। अगली सुबह जब खिड़की से धूप की पहली किरण हीरा के चेहरे पर पड़ी तो उसने आंखें खोली। वो अरबाज के बाजू पर सर रखी लेटी थी। अरबाज उसे बड़ी मोहब्बत से सोता हुआ दिख रहा था। सुबह बखैर मेरी जिद्दी बीवी। अरबाज ने उसके माथे पर बोसा दिया तो हीरा ने शर्मा कर अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। उसे अब एहसास हो रहा था कि अरबाज की शिद्दत के पीछे कितनी सच्चाई थी। और फिर वलीमे का ये दिन भी गुजर गया। वलीमे के बाद वाली सुबह जब वो दोनों नाश्ते की मेज पर बैठे थे तो हीरा ने से वो तमाम बातें बताई जो उसे माया के बारे में महसूस हुई थी। मुझे पता था आपने गलत नहीं किया होगा, बस मेरा काम ही ऐसा है कि मैं मजलूम का साथ देती हूँ। हीरा ने चाय का कप उसे थमाते हुए कहा तो अरबाज ने उसका हाथ थाम लिया। और अब तुम मेरा साथ दोगे हमेशा के लिए। कुछ दिन बाद एक करीबी दोस्त की दावत थी जहाँ हीरा ने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना था। फंक्शन में जब सब लड़कियां अरबाज की शख्सियत और उसके रूप की बातें कर रही थी तो हीरा को पहली बार फख्र महसूस हुआ। ये बारूप मर्द अब सिर्फ उसका है। वहां जब एक लड़के ने हीरा की तरफ देखने की कोशिश की तो अरबाज ने सबके सामने उसका हाथ पकड़कर से अपने करीब कर लिया। ये बीवी है मेरी। उसकी इस खुली मलकियत पर हीरा का दिल बाग बाग हो गया था। घर वापस आते गाड़ी में हीरा खिलखिला कर हंस दी। आप इतने पोजेसिव क्यों हो रहे हैं? सब देख रहे थे। अरबाज ने गाड़ी एक तरफ रोकी और उसकी तरफ मुड़ कर देखा। मैं पोजेसिव नहीं हूँ हीरा, मैं दीवाना हूँ तुम्हारा, और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। उसे हीरा का हाथ अपनी लबों से लगाया और अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार किया जिसका हीरा को शिद्दत से इंतजार था। हीरा ने उसके कंधे पर सर रख दिया था। अब उनके दरमियान कोई गलत फहमी नहीं थी, सिर्फ एक खूबसूरत एहसास था कि वो दोनों एक दूसरे के ही बने हैं। शादी के बाद ये दिन उनकी जिंदगी के बेहतरीन दिन बन गए थे। चारबाज की थोड़ी सी जबरदस्ती और ढेर सा प्यार हीरा को हर पल मसहूर रखता था। वो अब उसकी कैद में नहीं थी बल्कि उसकी रूह में समाई हुई थी, जिसके बगैर अरबाज अहमद खान अधूरा था। शादी के एक हफ्ते बाद जब हीरा सुबह सवेरे उठी तो उसने देखा कि अरबाज अभी तक गहरी नींद में था। उसके चेहरे की वो सख्ती जो दुनिया के लिए थी अब नींद में बिल्कुल गायब हो चुकी थी। हीरा ने धीरे से उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे किया तो अरबाज ने चौंक कर उसका हाथ थाम लिया और अपनी आंखें खोले बगैर उसे अपनी तरफ खींचा। हीरा उसके सीने से जा लगी और उसकी सांसें बेतरतीब हो गई। आप जाग रहे थे? हीरा ने हकलाते हुए पूछा तो अरबाज ने शरारत से एक आंख खोली। तुम्हारे लम्स की तपिश मुझे सोने कहाँ देती है हीरा। अब बताओ, आज नाश्ते में क्या खिला रही हो, या फिर मैं तुम्हें ही नाश्ता बना दूं? अरबाज की इस बेबाकी पर हीरा का चेहरा तमतमा उठा। उसे तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर अरबाज ने उसे मजीद खींच लिया। कहीं नहीं जा रही हो तो अभी तो हमारी जिंदगी हसीन हुई है। नाश्ते की मेज पर जब हीरा ने पराठे और अंडे रखे तो अरबाज ने बड़े गौर से उसे देखा। तुम्हारी ये सादगी मुझे पागल कर देती है हीरा। मैंने सोचा था तुम कोई बहुत मॉडर्न और नखरे वाली लड़की होगी जो कि किचन का रुख भी नहीं करेगी। हीरा ने चाय की प्याली इसकी तरफ बढ़ाई। मैं जैसी भी हूँ अब आपकी हूँ, और याद रखे मैं सिर्फ एक एनजीओ वर्कर नहीं हूँ, एक अच्छी बीवी बनना भी जानती हूँ। अरबाज ने उसका हाथ पकड़कर चूमा। तुम तो मेरी मलका हो हीरा, और इस घर की असल मालिक भी। उसी शाम उनके घर में एक बड़ी दावत थी जहाँ शहर के तमाम बड़े बिजनेसमैन उनकी बेगमात आई हुई थी। हीरा ने फिरोजी रंग की साड़ी पहनी थी जिस पर चांदी का काम था। उसकी गर्दन में हीरे का वो सेट चमक रहा था जो अरबाज ने उसे मुंह दिखाई में दिया था। हॉल में जब हीरा दाखिल हुई तो सबकी नजरें उस पर थम गई। अरबाज साफ सूट में मलबूस दूर खड़ा किसी से बात कर रहा था, मगर उसकी अकाबी नजरें मुसलसल हीरा का ताकुब कर रही थी। एक बिजनेस पार्टनर ने हीरा की खूबसूरती की तारीफ की तो अरबाज के चेहरे पर फख्र और थोड़ी सी जलन की लहर दौड़ गई। उसे फौरन हीरा के पास आकर उसके बाजू में अपना हाथ डाल दिया और सबको जताया कि ये हुस्न सिर्फ उसकी मालिक है। तुम्हारी ये साड़ी कुछ ज्यादा ही धन नहीं है? अरबाज ने उसके कान में सरगोशी की तो हीरा ने शरारत से उसे देखा। क्यों, आपको जलन हुई है? अरबाज ने उसे एक कोने में ले जाकर दीवार से लगा दिया था। जलन नहीं हो रही, बल्कि मेरा जी चाह रहा है कि अभी सबके सामने तुम्हें उठाऊं और अपने कमरे में लेकर बंद कर दूं ताकि कोई दूसरा तुम्हें देख ना सके। हीरा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलना चाहा।
آپ تو واقعی ڈرتے ہیں۔ ارباز نے ارباز خان اتنا پوزیسیونیس اچھی نہیں ہوتی ہے۔ ارباز نے اس کی ٹھوڑی پکڑ اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ پوزیسیونیس نہیں ہے ہیرا، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ یہ وہ عشق ہے جو میں نے کب سے سنبھال کر رکھا تھا، اور اب جب تم مل گئی ہو تو میں ایک پل کے لیے بھی تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ اس رات جب وہ لوگ کمرے میں آئے تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ ہیرا ٹیرس پر کھڑی بارش کی بوندوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی جب ارباز پیچھے سے آیا اور اسے اپنی باہوں کے ہزار میں لے لیا۔ بارش بہت خوبصورت ہے نا ارباز؟ ہیرا نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ بارش سے زیادہ تم خوبصورت ہو ہیرا، یہ لمحہ جس میں تم میرے پاس ہو۔ ان کی زندگی کے یہ دن کسی خواب کی طرح گزر رہے تھے جہاں ہر صبح ایک نئی محبت کا پیغام لیتی تھی۔ ایک دن ہیرا نے ارباز سے مایا کے بارے میں پوچھا، کیا آپ نے اسے واقعی معاف کر دیا؟ ارباز نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں نے اسے معاف نہیں کیا، بلکہ اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اب اس شہر میں دوبارہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکے گی۔ میں تمہارے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں ہیرا، کیونکہ تم میری وہ سچائی ہو جسے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی تہمت سے بچایا۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے پہلی بار کھل کر ارباز سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں ارباز، شاید اس دن سے ہی جب میں نے پہلی بار آپ کی آنکھوں میں وہ جنون دیکھا تھا۔ ارباز نے اسے اپنے دل سے لگا لیا تھا۔ اب ان کی کہانی میں کوئی دکھ نہیں تھا، صرف ایک لازوال خوشی تھی جو ان کے گھر کے در و دیوار میں مہک رہی تھی۔ 15 دن بعد جب ہیرا صبح سویرے اٹھی تو اس کے تکیے پر ایک لفافہ رکھا تھا جس پر ارباز کے ہاتھ سے لکھا تھا، تیار ہو جاؤ ہیرا، آج ہمیں اپنی نئی زندگی کا پہلا سفر شروع کرنا ہے۔ ہیرا نے حیرت سے اسے دیکھا اور جب لفافہ کھولا تو اس میں مری کے ایک پرتعیش ریزورٹ کے ٹکٹس تھے۔ ہیرا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا سامان پیک کیا اور چند گھنٹوں بعد وہ دونوں اسلام آباد سے مری کی طرف رواں دواں تھے۔ راستے میں پہاڑوں کے بیچ اور بادلوں کے زمین پر اترنا ہیرا کو پاگل کر رہا تھا۔ ارباز ایک ہاتھ سے اسٹرنگ سنبھالے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہیرا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ تمہیں پہاڑ پسند ہے نا ہیرا؟ ارباز نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بہت زیادہ ارباز، یہاں کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون ہے۔ ہیرا نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا۔ شام چڑھے جب وہ اپنے ہٹ میں واپس پہنچے تو باہر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ لکڑی سے بنی اس کمرے میں انگیٹھی میں آگ دہک رہی تھی جس کی نارنجی روشنی پورے کمرے کو ایک رومانوی رنگ دے رہی تھی۔ ہیرا کھڑکی کے پاس پھڑی باہر گرتی ہوئی برف دیکھ رہی تھی جب ارباز نے پیچھے سے آ کر اپنا بھاری کوٹ اس کے کندھوں پر ڈال دیا تھا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ سردی رہ جاتی ہوں ہیرا، اتنا باہر مت جھانکو۔ ارباز نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو ہیرا کا وجود سنسنا اٹھا۔ اس نے مڑ کر ارباز کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اس وقت صرف محبت اور سکون تھا۔ ارباز، مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ سب ایک خواب نہ ہو۔ رافعہ بھائی کے ولیمے کی وہ شام مجھے ابھی تک یاد ہے جب آپ نے اس لڑکوں کو اس بری طرح سے پیٹا تھا۔ میں سچ میں آپ کی اس غصے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ارباز نے ہیرا کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور نہایت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہیرا، وہ میرا غصہ نہیں تھا، وہ میرا وہ خوف تھا جو تمہیں کھو دینے کے خیال سے پیدا ہوا تھا۔ میں ایک ایسا مرد ہوں جو اپنی چیز پر کسی کی میلی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور تم تو میری زندگی ہو، میری عزت ہو۔ میں جانتا ہوں میں نے تھوڑی سختی کی، مگر وہ صرف تمہیں تحفظ دینے کے لیے تھی۔ کیا تم مجھے اس کے لیے معاف نہیں کر سکتی؟ ارباز کی آواز میں پہلی بار ایک ندامت تھی جو ہیرا کے دل کو پگھلا گئی تھی۔ اس نے اپنا سر ارباز کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا تھا۔ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا ارباز، جو مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ نے یہ صرف میرے لیے کیا ہے۔ بس میں چاہتی تھی کہ آپ تھوڑا نرم ہو۔ ارباز نے اسے اپنی بازو میں بھر کر بیڈ کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اب میں اتنا نرم ہو جاؤں گا کہ تم خود کہو گی کہ پرانا ارباز ہی بہتر تھا۔ اس رات برف باری کی اس ٹھنڈک میں ان کے درمیان کی تمام تلخیاں پگھل گئی تھی اور ایک نیا جنونی عشق پروان چڑھا تھا۔ اگلی صبح جب وہ دونوں مال روڈ پر واک کر رہے تھے تو ہیرا نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا جو کہ غبارے بیچ رہا تھا۔ اس نے ضد کر کے سارے غبارے خریدے
और ने हवा में उड़ा दिया। उसकी इस खिलखिलाहट पर अरबाज कुर्बान होने को तैयार था। तुम बिल्कुल बच्ची हो हीरा, अरबाज ने उसे अपने करीब करते हुए कहा, और आप बिल्कुल खड़ूस हैं। हीरा ने उसे छेड़ा तो अरबाज ने वही सबके सामने उसका गाल चुटकी से भींचा। हाँ, मैं हूँ खड़ूस, और तुम वो जिद्दी लड़की हो जिसने मेरे दिल की हवेली पर कब्जा कर रखा है। वापसी का सफर शुरू हुआ तो हीरा का दिल उदास था, मगर उसे पता था कि अब उसके साथ एक ऐसा मुहाफिज है जिसकी हर खुशी का ख्याल रखेगा। घर पहुंचकर हीरा ने दोबारा अपनी एनजीओ ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। अरबाज ने उसे रोका नहीं था, बल्कि खुद उसे दफ्तर छोड़ने गया था, और वहां सबके सामने उसका माथा चूमकर उसे रुखसत किया, ताकि सबको पता चल जाए कि एरा अहमद खान अब अकेली नहीं है। शादी के 3 माह गुजर चुके थे। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और वो दोनों अपने घर के टेरेस पर कॉफ़ी पी रहे थे, हीरा बहुत खामोश थी। अरबाज ने उसका हाथ दबाया। क्या बात है हीरा, आज इतनी खामोशी क्यों है? कोई परेशानी है क्या? हीरा ने शर्मा कर नजरें झुका ली और धीरे से अरबाज का हाथ अपने पेट पर रखा। परेशानी नहीं है अरबाज, एक खुशखबरी है। हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अरबाज का हाथ वहीं रुक गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हीरा को जोर से अपनी बाहों में भींच लिया। हीरा, सच, तुमने मुझे दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान बना दिया है। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने गुस्से को बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए एक बेहतरीन बाप बनना है। हीरा ने मुस्कुराकर उसे देखा। अब उनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो चुकी थी। मोहब्बत की वो पहली तोहमत अब एक खूबसूरत ख़ानदान की बुनियाद बन चुकी थी, जहाँ सिर्फ प्यार, सुकून और एक दूसरे के लिए बेपनाह एहतराम था। अरबाज अहमद खान अब सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं था, बल्कि एक मोहब्बत करने वाला शौहर था। और हीरा उसकी ज़िंदगी की वो रोशनी थी जिसने उसकी पूरी दुनिया रोशन कर दी थी।